اس کڑی کے آخری مقالہ خان میں آواز دینے جا رہا ہوں. جناب ڈاکٹر عابد علی خان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں. ہاں جی جناب عابد علی خان صاحب. میرے مقالے کا عنوان ہے ساحر کے فلمی نغموں کی اردو ادب کو دے. ہندوستانی فلمی نغموں کو اردو ادب اور تہذیب سے جوڑنے میں ساحر لدھیانوی کا نام اور مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ساحر سے پہلے بھی فلموں میں نغمے لکھے جاتے تھے، لیکن چند ایک شعرا کو چھوڑ کر بیشتر نغمہ نگاروں کا کام فلموں کے ذریعے پیسے کمانا ہوتا تھا. وہ پبلک کی مانگ بتا کر فحش نگاری اور تک بندی کو فلمی گیتوں کی معراج سمجھتے تھے. ساحر لدھیانوی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے فلمی گیتوں کو ذہنی آلودگی اور غلاظت سے نکال کر اردو شاعری کے خوبصورت حسن سے دلکش بنایا. وہ ایک بیدار اور پختہ شعور لے کر فلمی دنیا میں داخل ہوئے تھے. وہ کئی دوسرے شعراء کی طرح فلموں کی گندگی میں ڈوب کر نہیں رہ گئے، بلکہ فلمی گیتوں کو زندگی سے جوڑ کر بمقصد بنایا. وہ جانتے تھے کہ فلمی گیتوں کے ذریعے بھی لوگوں کی اصلاح کا کام کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے فلمی نغموں کے مجموعے گاتا جائے بنجارہ میں فرماتے ہیں. فلم ہمارے دور کا سب سے مؤثر اور کارآمد حربہ ہے. جسے اگر تعمیری اور تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو عوامی شعور کی نشو و نما اور سماجی ترقی کی رفتار بہت تیز کی جا سکتی ہے. میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو فلمی نغموں کو تخلیقی شاعری کے قریب لا سکوں اور اس صنف کے ذریعے جدید سماجی اور سیاسی نظریے عوام تک پہنچا سکوں. دراصل فلمی شاعری ساحر لدھیانوی کے لیے تفریحی مشغلہ یا پھر دولت کمانے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ ایک مشن تھا جس کے ذریعے وہ ترقی پسند تحریک کے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ فلم انڈسٹری پر کچھ ایسے لوگ قابض تھے جن کا ادب سے دور تک کا واسطہ نہیں تھا. ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی ادبی نغمہ نگار کا فلموں میں آسانی سے جگہ بنا لینا مشکل ترین کام تھا. بمبئی پہنچنے کے بعد ساحر کو ایسی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہاں کی ادبی محفلوں اور مشاعروں کے ذریعے ساحر کی مقبولیت خاص و عام تک پہنچ چکی تھی، لیکن فلموں میں انہیں کام دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. یہاں تک کہ کئی ادب نواز فلم ڈائریکٹرز بھی یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ساحر لدھیانوی بہت اچھے اور بڑے شاعر ہیں، لیکن ان سے فلموں کے لیے لکھوانا بہت بڑا رسک ہے. یعنی بمبئی میں رہتے ہوئے ساحر کے شروعاتی دن بڑے مشکلوں بھرے گزرے. پھر ایک دن ان کی ملاقات موسیقار ایس ڈی برمن صاحب سے ہوئی، جو نئی صلاحیتوں کے قدردان تھے. ایس ڈی برمن ہی تھے جنہوں نے ساحر سے ملنے کے بعد ان کی صلاحیتوں کو پرکھا اور اپنی فلم نوجوان کے لیے گیت لکھنے کا موقع دیا. اس فلم کے نغمے اتنے پسند کیے گئے کہ اس کے بعد وہ فلم ڈائریکٹر بھی ساحر کے ارد گرد گھومنے لگے، جو کہتے تھے کہ ساحر میں فلم لکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اب ساحر کو ایک کے بعد ایک فلمی نغمے ملنے لگے، لیکن فلمی دنیا میں ان کا نام شہرت کی بلندیوں پر اس وقت پہنچا جب انہوں نے اداکار گرودت کی فلم پیاسا کے لیے گیت لکھے. اس فلم میں ساحر کی کئی انقلابی نظمیں شامل کی گئیں جو دنیا کے فرسودہ نظام کے خلاف تیکھا طنز کرتی تھیں. فلم پیاسا کے گیتوں اور نظموں کی بدولت فلمی اور ادبی دنیا میں ساحر کی عظمت میں اور بھی اضافہ ہو گیا. اسی فلم میں شامل ایک نظم کے چند اشعار دیکھیے جس میں شاعر ایسی دنیا سے بیزار نظر آتا ہے جہاں عدل و انصاف ختم ہو چکا ہے اور سماج میں ہر طرف ناانصافی اور ظلم و زیادتی ہے. یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے، وفا کچھ نہیں، دوستی کچھ نہیں ہے، جہاں پیار کی قدر ہی کچھ نہیں ہے. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ ساحر کی ایک اور نظم جو چکلے کے عنوان سے لکھی گئی تھی، اسے بھی ذرا سی تبدیلی کے ساتھ فلم پیاسا میں شامل کیا گیا، اور یہ تبدیلی اس وجہ سے کی گئی تھی تاکہ اردو نہ سمجھنے والے حضرات بھی بآسانی سمجھ سکیں. یہ نظم ایسی عورتوں کی بے بسی کو بیان کرتی ہے جو مردوں کی وحشت کا نشانہ بن کر جسم فروشی کی دلدل میں پھنس چکی ہوں. ان عورتوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے ساحر فرماتے ہیں: مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس راگھا کی بیٹی، پیمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہیں؟ ذرا ملک کے رہبروں کو بلاؤ، یہ کوچے یہ گلیاں یہ منظر دکھاؤ، جنہیں ناز ہے ہند پر ان کو لاؤ، جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہیں؟
दरअसल साहिर की ज़ाती ज़िंदगी में जुड़े उतार चढ़ाव आए दरअसल साहिर की ज़ाती ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए। वो बचपन से लेकर जवानी तक बहुत सी मुश्किलों से घिरे रहे। साहिर अपने वालिद चौधरी फजल मोहम्मद की 12वीं बीवी सरदार से 18 मार्च 1919 को पैदा हुए। इनके वालिद रवायती ज़मींदारों की तरह मगरूर और ऐश पसंद आदमी थे। उन्होंने कभी भी अपनी औलाद और बीवियों को इज्जत की निगाह से नहीं देखा था। उन्होंने अपनी अय्याशी में जायदाद का एक बड़ा हिस्सा फरोख्त करके साहिर की वालिदा को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। अपने वालिद का घर छोड़ने के बाद साहिर ने समाजी नाइंसाफियों को कदम कदम पर झेला। इस तरह ज़िंदगी की दुश्वार गुजार वादियों से गुजरते हुए साहिर का सियासी और समाजी शऊर पुख्ता होता गया। उन्होंने अपनी वालिदा की शक्ल में एक औरत की बेबसी और वालिद के रूप में मर्दों की ज़्यादतियों को देखा और झेला था। इसलिए उनकी शायरी में औरतों के लिए जो दर्द और एहसास है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। फिल्मों में साहिर के बहुत से ऐसे नगमे हैं जो ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी समाज में औरतों के साथ हो रही ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों को बयान करते हैं। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने इसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। औरत संसार की किस्मत है फिर भी तकदीर की बेटी है, अवतार पैगंबर जनती है फिर भी शैतान की बेटी है। फिल्म तराजू में फिल्माई गई इस गीत के बोल देखिए जिसमें मर्दों के समाज में औरत की बेकदरी को बयान किया गया है। लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, इसमें रूह की होती है कहाँ जानते हैं। साहिर लुधियानवी ने अपने नगमों के ज़रिए सिर्फ हिंदुस्तानी ख़वातीन का ही दर्द बयान नहीं किया बल्कि उन किसानों और मजदूरों की बात भी की है जिनकी मेहनत के बलबूते पर दुनिया की तमाम मादी आसाइशें और आराइशें मुहैया हैं। फिल्म फिर सुबह होगी के इस नगमे के बोल देखिए जिसमें शायद जहाँ एक तरफ गरीबों और मजदूरों की दर्द भरी ज़िंदगी को बयान करता है, वहीं दूसरी तरफ उसे यकीन है कि एक दिन यही मेहनत कश लोग हिंदुस्तान की तकदीर बदल देंगे। चीनो अरब हमारा, जिद्दो सिता हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, तालीम है अधूरी मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा, पतला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा, मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे हम, हैरत से मुँह तकेगा सारा जहां हमारा। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में साहिर के लिखे और भी बहुत से गीत हैं जो मजदूरों, किसानों और मेहनत कश लोगों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। फिल्म नया दौर के खूबसूरत नगमे के बोल देखिए, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सीध झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साहिर लुधियानवी ने उर्दू नगमों के साथ साथ ऐसे बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें हिंदी और संस्कृत अल्फाज की बहुतात है, लेकिन ये गीत भी इतने ही मकबूल हुए जितने उर्दू में लिखे गए नगमे पसंद किए गए थे। दरअसल उनके नगमे किसी खास जुबान तक महदूद नहीं थे, बल्कि साहिर की अखलाकी सोच, फिक्र और एहसास ने इन नगमों को लाफानी बना दिया था। फिल्म चित्रलेखा में फिल्माए गए इस गीत के बोल देखिए, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे तू काहे न दिए करे, उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे कोई न संग मरे। इसी फिल्म का एक और नगमा देखिए जिसमें साहिर ने ऐसे साधु संतों को अपनी तंज का निशाना बनाया है जो दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय जंगलों की राह लेते हैं। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना ना सके उस लोक में भी पछताओगे, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। फिल्मों में ऐसे बहुत से गीत हैं जिनमें साहिर ने बज़ाहिर हमारे समाज के रस्म व रिवाज पर तंज किया, लेकिन उनका असल मकसद हमारे माशरे में फैली बुराइयों को ख़त्म करके लोगों की इस्लाह करना था। जैसे फिल्म धूल का फूल में मजहब के नाम पर लड़ने वालों को तंज करते हुए एक मासूम बच्चे को तालीम देते हैं, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। साहिर के ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो से जो नगमे नशर किए जाते थे इनमें नगमा निगार का नाम हज़फ कर दिया जाता था, सिर्फ गुलूकार और मौसीकार का नाम ही नशर किया जाता था। साहिर पहले शख्स थे जिन्होंने फिल्म राइटर एसोसिएशन के साथ मिलकर ऑल इंडिया रेडियो के इस अमल के खिलाफ आवाज़ उठाई। आखिर ऑल इंडिया रेडियो को साहिर की बात माननी पड़ी और इसके बाद भी मौसीकार और गुलूकार के साथ नगमा निगार का नाम भी नशर होने लगा। साहिर ने अपने गीतों में जहाँ सियासी समाजी मसाइल को बयान किया, वहीं आम लोगों के ख्यालात और जज्बात को
को परखते हुए बहुत से रूमानी नगमे भी लिखे, जैसे जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और मैं पल दो पल का शायर हूँ वगैरह गीत लाफानी शोहरत हासिल कर चुके हैं। इसी अंदाज के कुछ और गाने भी हैं जिनमें रोमानियत के साथ साथ कुछ ऐसे अशार भी हैं जिनके ज़रिए साहिब ने नौजवानों को ज़िंदगी की दुश्वारियों और परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का दर्स और हौसला दिया है। मसलन एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी भी मकाम पर जम गए तो कुछ नहीं, चाहे कोई तुझसे खुश हो या गालियाँ हज़ार दे, मस्त राम बन के ज़िंदगी के दिन गुजार दे। ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, यहाँ चोर है सब कोई साथ नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अगरात नहीं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। हकीकत तो यह है कि साहिर के सभी नगमों में मोहब्बत का इरफान है जो हर रिश्तों में कशिश और जाज़ियत पैदा करता है, तो चाहे वो रिश्ता खून का हो, जज्बात का या आम इंसान का। साहिर की नगमा निगारी पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जान निसार अख्तर ने फरमाया था, साहिर ने अपनी कलम की कुव्वत से फिल्मी गीतों को अगर एक तरह हुस्न की लताफत, नज़ाकत, इश्क का दर्द, कसक बख्शी, तो दूसरी तरफ समाजी, मादी और इक़्तिसादी शऊर दिया। उसने कभी खुद को धोखा नहीं दिया, ना अपने फ़न को, ना तरक्की पसंद तहरीक को, ना अवाम को। उसने वो किया जो बहैसियत बेदार शायर का फ़र्ज़ था। ये सच है कि फिल्मी शायरी को किसी भी तरह अदबी शायरी का बदल नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिल्मी शायरी को अदबियत अदा करने का जो काम साहिर ने किया, फिल्मी दुनिया हमेशा उसकी एहसान मंद रहेगी। अपनी इनफरादियत की वजह से उनके नगमे हमेशा सुने, गाए और गुनगुनाए जाएंगे। अगरचे साहिर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी बेमिसाल शायरी और नगमा निगारी उनके नाम को हमेशा ज़िंदा रखेगी। बकौल थे, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थमने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जमने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। आखिर में मैं अपनी बात को साहिर की इस शेर से ख़त्म करना चाहूँगा, हज़ार बर्फ़ गिरे, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं।